Hello and welcome to another episode of Tuesday Talks. My name is Iftikhar Ahmed and I'm the editor of Apir Pothi, which is India's only digital art newspaper, and it's a vertical of Apir India. Uh, so today we have four participants with us, four artists who are also the winners of Apir India First Take 2022, and we'll be talking to them and we'll know about their journey and what they are doing in their life and what are their career aspirations and how they can inspire upcoming artists. Although they are also emerging artists, but yeah, it's always good to learn from each other. So let's welcome Riddhi Vasoya. Riddhi Vasoya, she is from Gujarat, and we have Chandrapal Panjre from Balaghat MP. We have Adarsh Palandi, Damoh, he's from Damoh MP, and we have Anshu Kumari from Jharkhand. Which part of Jharkhand? I forgot to ask. It's Anshu. Jamshedpur, Tata Nagar. Oh, wow. Amazing. So I would like to, as we all know, you are the winner of Appear India First Take 2022. And एक चीज जो मैंने notice करी in the works of Riddhi, Chandrapal and Adarsh, your works are figurative and you talk about human experiences. And then we have Anshu Kumari, uh, whose work I saw is on fabrics, and it's more based on stitches, if I'm not wrong. Yeah. So, could you like to elaborate more on it? Oh, so my work. So basically, I start my work by collecting kathris, like also known as kathas, sujni, in different states, right? So I collect them, the used ones basically, not the ones that are new. After collecting them, I revive them, restore them, again, work on them. I take that material as a base for my project, symbolizing the different land structures that we see around or the degradation of a land we see. So that is how I take used kathris or sujnis and then work on them. And you can see symbolic representations like the squares and the shaded portions. You could see the structures. They are all symbolic representations of the structures I want to show, like basically the building of lands, the destruction of land, or the building of towers and everything. However, it's depicted on a map. Basically, that is what I'm trying to show on those things. Well, it's amazing because Riddhi Vasoya, she also does something with textiles and also with printmaking. So I would like to know from you, you talk about human in your artwork, contrasting to Anshu, जो कि बात करते हैं landscape and surroundings की. But Riddhi talks about, she explores human and the behavior in human. So, where Yeah. did this inspiration come from? इसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे. हम्म, हमारा जो है ना, सब जगह पे क्राउड रहता है, तो मैं उसमें Yes. से सब करती हूँ. ह्यूमन क्राउड है और इसमें से जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका जो पर्सनालिटी है, तो हम ऐसे ही किसी को देख के कैसे कपड़ों से वैसे ही जज करते हैं, तो वो उसका जो डिटेल है वो सब उस उसके हिसाब से उसका पर्सनालिटी वो है सब, तो वो करने का ट्राई करते हैं. थोड़ा सा और इसको अगर आप elaborate करना चाहें. Personality कैसे? You talk about behavior pattern. ऐसे ऐसे ही नहीं, पर क्राउड में हमने किसी को ऐसे ही देख लिया तो ऐसे हम जानते नहीं ना किसी को, तो क्या है कि Right. कपड़े कैसे पहने हैं वो सब देखते हैं. और क्राउड में से मैं कुछ पर्टिकुलर पर्सन को लेके भी उसका ड्राइंग वो सब करती हूँ कि क्राउड में कैसे अकेले हो जाते हैं. क्राउड है फिर भी जो फीलिंग है वो अकेले वाली है. हम नहीं जानते ना सबको, ऐसे जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको देख के उसको सब स्केचिंग वगैरह भी करती हूँ और उसको भी पर्सनली वो ड्राइंग करती हूँ. और मैं वाटर कलर एचिंग वो सब मीडियम में काम करती हूँ. Okay. So, ऐसे. uh, talking about individuality. So, Adarsh Palandi's work is filled with this theme of individuality, and it talks about existentialism and how society has expectations with us and it governs.
So when did this consciousness came to you, and when did you realize like this is your voice and this is something you want to explore in your artwork? एक्चुअली वैसे जब मैं लाइफ के साथ डील कर रहा था, जब एजुकेशन का टाइम था और एजुकेशन से जस्ट मैं पास आउट होके जब आर्ट फील्ड में एंटर किया एज एन प्रोफेशनल, तो काफ़ी चीज़ें होती है जो हम डील करते हैं लेकिन हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं उन चीज़ के बारे में, जैसे कि अप्स एंड डाउन्स हैं, पॉलिटिक्स है, फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं, फैमिली है, इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स होता है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो है ना सबकॉन्शियसली हम उससे डील कर रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इम्पेक्ट करती है। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं वो एक अलग स्टेज होता है। तो एक टाइम आया जब मैं इन सब चीज़ों से अवेयर हो पाया कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, और बेसिकली सारा बॉडी फंक्शन, मेंटल फंक्शन, हमारा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो जो सराउंडिंग है हमारा, जैसा हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है, तो वो हमको हमारे ग्रोथ के लिए वर्क करता है और सबकॉन्शियसली हम उन सब चीज़ों को ग्रास्प करके उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस से पर्सनली मैंने उन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है और ये मेरी जर्नी का एक पार्ट है काफ़ी हद तक, और अभी भी उस पार्ट में मैं रिवॉल्व हो रहा हूँ। अभी ग्रेजुअली डेवलप भी हो रहा है उस चीज़ में, एज एन मीडियम भी, एज एन विजुअल्स भी और एज एन एक्सपीरियंस भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं फील्ड में कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टेजेस में मैं बहुत एक्सपीरियंस अलग अलग टाइप का, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत, तो मैं अलग स्टेट्स में अलग कल्चर के साथ, अलग लोगों के साथ, अलग लैंग्वेजेस के साथ डील करता हूँ काफ़ी कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते स्टार्टिंग में, और वो इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट करता ही है। उसका स्पेस का अपना एनर्जी होता है, सराउंडिंग का अपना एक इम्पैक्ट होता है, ऑरा होता है, जो हम ग्रास्प करते रहते हैं, हम एक्सेप्ट करते रहते हैं और वो चीज़ को हम अपने डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है सारी वर्क करती है हमारे साथ और वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है हमारी लाइफ स्टाइल के साथ। Yeah. If you can just give me some examples so that will be easier for me to understand more about your thought process. वैसे मैं पर्टिकुलरली किसी इंसिडेंट पे डिनोट तो नहीं करूँगा, लेकिन जैसे हम मान लीजिए एक, अभी जैसे हम एक स्पेस में हैं, अभी ये इंटरव्यू चल रहा है, तो इस मीटिंग में हम लोग आपस में वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबका एक एक एनर्जी है जो हम वर्चुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ फिजिकली तो हम हैं नहीं सामने, लेकिन इस स्पेस का अपना एक एनर्जी है जो हम ग्रास्प करने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में, और जो भी है, तो उस एनर्जी से हम क्या यूटिलाइज करके हमारी जर्नी में यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ तो पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, लेकिन जब जैसे हम जर्नी में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के बीच में है, कॉलेज में है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पुलिंग होती है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा करने दिया जाए, या फिर वो एनर्जीज जो है ऑटोमेटिकली आपको रोकने की कोशिश करती है। और उन एनर्जीज को अगर आप बाईपास करें और अगर आप अकेले ही न लड़के जो सराउंडिंग है उसके साथ उस चीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करें और उनको भी इन्वॉल्व करें उनके डेवलपमेंट के लिए और आप अपने डेवलपमेंट के लिए भी, तो ये सारी वर्क करता है एक साथ और फिर उनको ईजी होता है बाईपास करना। तो ये सारा एक एक्सपीरियंस है जो मैं एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे डिनोट नहीं करूँगा। चंद्रपाल से मैं जानना चाहूँगा, you talk about a lot of rural centric themes in your artwork. So politics को का क्या impact है आपके artwork में, या किसी भी तरीके से वो impact करता भी है? पॉलिटिक्स को तो इम्पैक्ट करता ही है सर मेरा काम, क्योंकि मैं फैब्रिक पर ही काम करता हूँ, कपड़े में। तो हर एक जगह का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति होती है वे वहाँ के फैब्रिक से ही पता चलता है कि कौन कैसा कपड़ा पहना हुआ है। जैसे ठंडे जगह में ऊन का कपड़ा पहनते हैं, जिसमें अभी दार्जिलिंग गया था वहाँ से थिक ऊन ले आया, और छत्तीसगढ़ का जो ऊन है वो बहुत कटन्स पहनते हैं यहाँ पर।
तो वहाँ को रिप्रेजेंट करता है ये चीजें। और जैसे एक मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर कपड़े किस तरह से पहने जाते हैं और पुराने होने के बाद उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, जो एक अभावग्रस्त होता है किसान लोग, वो किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते, यूज करते हैं। जैसे मेरी मम्मी जो साड़ी पहनती है, उससे वो कांधा बनाती है, कथरी, गोदरी, सुजनी भी बोलते हैं, बिहार में नेंदड़ी कहते हैं। तो वो पहनने के बाद उसको गुदड़ी बनाती है, उसको फिर हम लोग बचपन में उड़ते बिछाते थे, अभी भी बनता है मेरे घर में। तो पुराना हो जाने के बाद उसको हम लोग, मैं देखा कि उसमें आर्ट फॉर्म है, तो मैं अब उसको पेंटिंग के रूप में यूज करता हूँ, और उसी से मेरा एक मौलिक शैली बना है। अब वो टेक्निक को मैं एज ए आर्ट फॉर्म के रूप में यूज कर रहा हूँ। All right. तो do you travel a lot, चंद्रपाल? क्या आप ट्रैवल करते हैं काफी? जरूर, मैं काफी बहुत बहुत ट्रेवल करता हूँ पसंद है मुझे ट्रेवल करना। और ट्रैवल करते हुए क्या चीजें आप के जहन में होती है जब आप ट्रैवल करते हैं तो? ट्रेवलिंग से मैं चीजों को देखता हूँ, जैसे कल्चर हो गया, अजंता एलोरा के, जस्ट मैं तुरंत अजंता एलोरा से आया था, तो वहाँ की जो पेंटिंग्स है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत ज्यादा। तो उसको मैं अपने पेंटिंग में लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र गया, लखनऊ गया, तो लखनऊ से चिकनकारी के कपड़े ले आया कि वहाँ का क्या चीज है, वो एसेंस क्या है। और जैसे असम गया तो वहाँ का गमछा वो कलेक्ट करके लाया मैं। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ की कल्चर कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, और खासकर वहाँ का पहनावा कैसा है, जीते कैसे हैं वो लोग, और वहाँ का जो हेरिटेज है और लैंडस्केप कैसा है वहाँ का, ये सभी चीजें दिखती है। वो काम में इम्पैक्ट करता है, वो मेरे काम में आ ही जाता है। Right. I would like to come to Anshu. Uh, so as we, what I am comprehending from this conversation is, you four people, your art is heavily inspired by what surrounds you, and you explore landscapes. And does nature play a role in it? I would like to know. Definitely, nature plays a bigger portion of it because when you talk about landscapes, the first thing that comes in one's mind is nature, right? So, as Chandrapal is depicting a different aspect through his Kathris, even I'm working on a similar medium, but what I'm looking forward is the landscapes that are like endangered and destructed by people, you know, the usage of people, how it's getting endangered. So, while we are traveling from one place or the other, for example, if you visit a place today and if you visit a place after 10 years, you can see the difference in the place, right? You'll see more structures popping up. So that question arises in our mind that land is limited, right? Land isn't like growing in size every day, but we as people are growing. So we like how are we consciously dealing with the aspects of land? So that is what I'm trying to question about the destruction that humans are like coming up with on the land and the surface. So Kathri, I see as a surface, like the land, because Kathri has layers in it, right? Similarly, a land has layers in it. So how is it getting damaged? Also, when we use Kathri, we use it beneath our beddings, right? To provide us with comforts. And according to the usage, it gets destructed. So the way a person uses the Kathri underneath the bed sheets, it is that shows similarly how the land also get destructed according to our usage actually. So that is what I'm trying to address in this thing. So nature obviously plays a very big role. I would like to share one incident. So this was my first flight experience back in 2014, I guess. So before that, I used to believe like man is destroying nature, left, right, center. They are cutting trees, they are making buildings and everything. Then I took my first flight and I got a window seat, and then I was seeing at the ground. Then I was surprised. Oh my god, there's a lot of green patches still there. So that gave me a sigh of relief. No, no, though that shouldn't give you a sigh of relief because when you see it on a larger perspective, you know,
If you see the definitely. database, it's changing drastically. So don't come in, relief with seeing that. Please don't come. That was me, naive, and yeah, I still laugh at it when I recall the incident. So it's interesting. And do you also explore the themes of nostalgia through landscape? So I would say nostalgia in a different way because for me, how I started working on this medium was started due to nostalgia because I visit my native place that is in Bihar just once a year. So during our childhood, like me and my sister did something on the bed sheet. So the remains were like the stains of it got on those kathris beneath the bed sheets. After few years when we went back, we tried to see, oh, is it still there or not? That is the time when I recognized that yes, this is something that I could work on. It carries memories from the past, right? So that is a kind of nostalgia for me when I speak about, not exactly about the landscapes actually. All right. So, Riddhi, what do you think about nostalgia? Does it reflect in your artwork as well? When you talk about crowd and loneliness and behavior pattern? प्लीज हिंदी में आप डू वांट ओके, तो क्या आपके काम में भी आपको नॉस्टैल्जिया किसी तरीके से आप एक्सप्लोर करते हो एज अ थीम? नॉस्टैल्जिया एज इन कि बचपन में कोई चीज हुई थी, हम उसे याद करके खुश हो रहे हैं, ऐसे एंड बचपन में तो सम कुछ सॉर्ट ऐसा ऑफ। नहीं, पर क्राउड तो ऐसा ही है कि मैं बचपन से ही वो ये क्या बोलते हैं, हॉस्टल वगैरह में ही रही हूँ, बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ी हूँ, तो क्राउड वगैरह तो है ही बीच में। तो कुछ भी, और मेरा स्टडी भी ऐसे ही था कि मैं मार्केट वगैरह जाके स्केचिंग किया वो सब, तो ह्यूमन फिगर, वो क्राउड, वो सब ही रहा है। तो ऐसे ही बचपन से ऐसा तो कुछ और नहीं है। Where did you do your schooling from, Riddhi? आपने अपनी हाँ, हेलो। स्कूलिंग और आर्ट एजुकेशन कहाँ से किया है? आई वुड लाइक टू नो। आ, मेरा आर्ट एजुकेशन अहमदाबाद से, सीएन विद्यालय। ओके, एंड आप क्या आपको लगता है कि जो हाँ। आपने बीएफए किया है वहां से, राइट? हम्म। और मेरा ग्राफिक्स एमएस से हुआ है, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। बड़ौदा से। तो पीजीवी। डेफिनेटली बड़ौदा एंड अहमदाबाद के एक्सपीरियंस ने आपके आर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया होगा। हाँ, हाँ, बहुत सारा। तो कैसे कैसे उसने आपके आर्ट के विजुअल लैंग्वेज को इंस्पायर किया है, चेंज किया है? अहमदाबाद में तो मेरा आर्ट स्टडी ऐसे एकेडमिक ही रहा है, तो ह्यूमन फिगर स्टडी, कलर कंपोजिशन, पेंटिंग कैसे बनाना है, कैसा वो सब जो होता है, वो मैंने अहमदाबाद से ही सीखा है। और विजुअली कैसे करना है, क्या है, वो सब मैंने बड़ौदा से, एमएस से, वो सब यहाँ से आया है, विजुअल स्ट्रॉन्ग जो भी है। और अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी एक रेसिडेंसी में हूँ, स्पेस स्टूडियो करके जो है बड़ौदा में, वहां पर। एंड रेसिडेंसी कैसा चल रहा है? आपका क्या अभी एक्सपीरियंस है अच्छा चल रहा रेसिडेंसी है। का? अच्छा, अच्छा है एक्सपीरियंस सबके साथ। वहां पर और भी आर्टिस्ट होते हैं, तो सबके साथ काम करने में मजा आता है, और भी स्टूडियो है तो। ऑल राइट।